Assalamu alaikum students. This is Naz Online Educators, and today we are going to learn about the type and movement of tectonic plates. As you know, and we have learned earlier that the earth crust is broken into roughly 20 sections that are called tectonic plates, and these plates are moving constantly and riding on the mantle. Okay, these plates sometimes press together or move apart, releasing energy, and this is their movement. They are constantly moving due to the movement of these plates. Sometimes volcanoes erupt, and sometimes earthquake. There was a sudden earthquake. So all this is due to the movement of tectonic plates. There are two types of tectonic plates. Which are the two types of tectonic plates? Now we are going to learn about that. One is the continental plate and other is the oceanic plates. What is the continental plate? These are the pieces of the crust that are made up of land. Mostly these are beneath the land, and as the name show that the continental plates are made up of the continents, and now and on the other hand the oceanic plate is also made, and they are found under the ocean bed. There is a comparison of continental plates and oceanic plates here. The continental plates are beneath the continents and the oceanic plates are beneath the seabed. The continental plates are less dense, but the oceanic plates are more dense. Continental plates are lighter. They are made up of lighter elements like feldspar, oxygen, and aluminium. And the oceanic plates are made up of heavy elements, and they are made up of basalt and magnesium. Because continental plates are lighter, so they rest in the upper mantle, and the oceanic plates are heavier, so they rest in the lower mantle. Okay, this is a comparison between oceanic plates and continental plates. You can also say that this is कंपैरिजन भी कह सकते हैं आपको, कंपेयर एंड कंट्रास्ट. यू वांट टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट बोथ. दिस इज आल्सो अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशनिक प्लेट्स. ओके, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स में आपको प्लेट्स नज़र आ रही है ना, लाइक अफ्रीकन प्लेट देखें, ये ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में है. अरेबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, मतलब जो आपको पानी में नज़र नहीं आ रही बल्कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पे, कॉन्टिनेंटल एरिया में आपको नज़र आ रही है, दैट आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. लाइक दिस इज़ अ साउथ अमेरिकन प्लेट, ज़्यादातर कॉन्टिनेंट में है. अफ्रीकन प्लेट ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स में है. अरेबियन प्लेट ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स में है. यूरेशियन प्लेट ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स में है. और इधर इंडियन प्लेट है, ये भी ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स में है. ठीक है, or these are all beneath the continents. They are less dense, they are lighter, they are made up of lighter elements, and they are found in the upper mantle. Okay, on the other hand the oceanic plates are beneath the seabed. आप देखिए जितनी भी आपको समंदर के अंदर नज़र आ रही है, लाइक नाज़का प्लेट है, ये आपको है, ये ज़्यादातर उसमें है. अरेबियन प्लेट है, और इसी तरह से ये स्कॉटिया प्लेट है. अफ्रीकन प्लेट हाफ आपको भी पानी में नज़र आ रही है. तो जितनी भी प्लेट्स आपको सी के अंदर नज़र आती हैं वो सी बेड में पाई जाती हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड द ओशनिक प्लेट्स. दे आर मोर डेंस, दे आर हैवियर, दे आर मेड अप ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, एंड दे फाउंड लोअर इन द मेंटल. ये तो दो तरह की प्लेट्स हो गई. कौन कौन सी हुई? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड oceanic plates. Now we are going to learn about their movement, how they move. There are three types of plate movement. First is convergent. There is a spelling mistake in the convergent. Divergent movement and slide pass movement. तीन तरह की movement होती है, convergent, divergent and slide pass movement. What is the convergent movement? When the plates move towards each other, this is called the convergent movement. आप इसमें देखें, इस पिक्चर में आप एरर्स, रेड एरोस को देखें कि एक प्लेट जो है वो इस तरफ आगे जा रही है, जबकि दूसरी प्लेट उसकी मूवमेंट इस तरफ आगे जा रही है. इट मीन्स दे आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट. एंड देन व्हेन कन्वर्जेंट plate movement occur, what happened?
If there are two plates that are moving toward each other, one is oceanic plate and other is continental plate, then what happened? Oceanic plates sink because and it causes volcanoes and deep सी ट्रेंचेस. तो इसमें क्या होता है कि एक ओशनिक प्लेट थी और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी. तो ओशनिक प्लेट जो है वो सिंक कर जाती है और फिर उसके नतीजे में बनता क्या है, वहाँ पे सी ट्रेंचेस बनती हैं या वॉल्केनोज बनती हैं. ठीक है, इसी तरह से दोनों ही अगर ओशनिक प्लेट्स हैं, व्हेन दे आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर देयर इज़ अ कन्वर्जेंट मूवमेंट बिटवीन द ओशनिक एंड ओशनिक प्लेट. फिर क्या होता है, वन सिंक एंड फॉर्म आइलैंड वॉल्केनोज लाइक जापान. तो इसमें से भी एक सिंक कर जाती है और फिर क्या होता है, वहाँ पे वॉल्केनोज बनते हैं. इफ़ there are two plates, continental plate and continental plate, and they are moving toward each other, they have convergent movement, then they push each other and form a big mountain like Himalayan mountain ranges. तो ये क्या करती हैं कि ये एक दूसरे को पुश करती है, वहाँ पे ज़मीन जो है वो फोल्ड होती है, दैट एंड फोल्ड माउंटेन became. Okay, this is the convergent movement. Now we are going toward the divergent movement. What is the divergent movement? When two plates move away from each other, that is called the डाइवर्जेंट मूवमेंट. तब डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है. ठीक है, आप इन दो एरोज को फोकस करें, एक जो है वो इस साइड पे मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो इस साइड पे मूव कर रही है. लाइक दीज प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. जब इस तरह की मूवमेंट होती है, डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है, तो तब क्या होता है, व्हाट हैपन्स देन? Under ocean, magma rises up, form new sea floor and ocean mid ridges. तो फिर ये होता है कि मैग्मा राइज अप होता है समंदर के नीचे, न्यू सी फ्लोर बनता है और वहाँ पे न्यू रिजेस बनती हैं. जैसे अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के अंदर जो है मोस्टली प्लेट्स जो हैं वो दे आर डाइवर्जेंट, दैट आर द डाइवर्जेंट प्लेट, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. वहाँ पे मिड अटलांटिक रिज बन गई है जो दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर माउंटेन भी है. ठीक है, अच्छा, और कॉन्टिनेंट्स पे हो तो तब क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स स्प्लिट अपार्ट एंड फॉर्म रिफ्ट वैलीज. तो वहाँ पे फिर रिफ्ट वैलीज बनती हैं, जो वो एक दूसरे से, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से थोड़े इलादा हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और वहाँ पे रिफ्ट वैलीज बनती हैं. और यहाँ पे इसकी एक मिसाल एग्जाम्पल इज़ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली दैट इज़ मेड अप ड्यू टू द डाइवर्जेंट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, एंड द लास्ट मूवमेंट इज ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. ट्रांसफॉर्म मूवमेंट किस तरह की होती है, व्हेन टू प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजेंटली, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. आप इन पिक्चर को देखें कि हॉरिजेंटली जब ये एक दूसरे से अलग इनकी मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, एक जो है वो इस साइड पे मूव कर रही है और दूसरी उस साइड पे मूव कर रही है, तो फिर क्या होता है कि सम टाइम दीज प्लेट्स ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर एंड स्टक एंड सडनली स्लिप. But no crust is found, no sea floor is no new sea floor is found, no fold mountain is found in this type of movement. Only the result of this type of movement is the a very strong earthquake we feel on the earth. ठीक है, इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसमें ना तो कोई ज़मीन बनती है, इनके ना तो कोई न्यू सी फ्लोर बनता है, ना ही कोई ज़मीन तबाह होती है, ना कोई फोल्ड माउंटेन बनता है, बल्कि सिर्फ इसके नतीजे में हमें स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक फील होता है. ठीक है, I think so you have enjoyed the video. This is also helpful for you, so kindly like and subscribe the channel. Thank you.